In that placement cell, pre-placement training cell. So now the main thing is like ITI, Government ITI Berhampur is one of the largest institution in Asian continent. You are getting my point? Yes, sir. Government ITI Berhampur हमारे एशिया का एक लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन है एंड when it comes to rank, जैसे होता है ना ऑल इंडिया रैंक, हम लोग जैसे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक लाते हैं. So it is the top institution in the chart. I mean, as per the DTT rankings, it is the top institution in Orissa. पिछले 5-6 सालों से we are continuously we are in the top most rank. Okay. And जब ऑल इंडिया रैंक की बात आती है, so we are in the 12th spot. वो भी that to top 100 institution में ITI Berhampur is in the 12th spot. And we are continuously in that spot since last 4 to 5 years. Okay, and as you all can see, this is the largest this campus, and this is our playground. This playground has already been declared as the largest open air scrap park. I am repeating it once again. ये जो campus में ये जो आप लोग ground अभी देख रहे हो ना, this has been declared as the largest ओपन एयर, खुला आकाश के नीचे ये जो ग्राउंड है, ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर स्क्रैप SCARP स्क्रैप पार्क है. स्क्रैप पार्क इसलिए बताया जाता है, यू कैन सी ऑल द स्कल्पचर्स. ये सारे स्कल्पचर्स स्क्रैप मटेरियल से बनाया गया है. स्क्रैप मटेरियल्स मतलब जो कि वेस्टेज होता है, हर एक प्रैक्टिकल्स के ट्रेड में जो वेस्टेज होता है, जो शीट्स बच जाता है, उससे ये सारा चीज यहाँ पे बनाया गया है. So this was a waste earlier. The motto is this was a waste earlier, but now it has been converted to waste to wealth. अब समझ में आया? Okay, sir. That is why it has been unanimously declared from Guinness record that is the largest open air scrap park, and that is we are proud to have it in our Government ITI Berhampur. So joining with me my colleague Gurpreet sir, both of us we will ensure we will take you through the walkathon and different project like floors, workshop. So let us start. Welcome once again to Government ITI Berhampur. For the next 20-30 minutes we will visit different workshop and where you can see how the projects are going on. Okay. So I would just like to, on a protocol basis, I would just like to inform each one of you, kindly do not touch or any in the workshop you do not touch to anything or you come in contact with anything. Okay. Yes, sir. Let's start. Sir. Hi, good afternoon. Good afternoon, sir. Fine. How are you feeling here? कैसा लग रहा है? बेटर लग रहा है. क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. क्या अच्छा लग रहा है? Seeing the surrounding. What surrounding? Surrounding. Especially what? Scrap. जी सर. Okay, great. So without wasting time, let's go. Right? Yes, sir. entire 49 ITI in Orissa has inside Orissa. This is one of the largest workshops
space inside the indoor space. So that's why it has been one of the largest like workshop in Odisha. तो ये बर्तमान आम जी जो प्रोजेक्ट आम मैंने देखुले जो बाहर जो स्कल्पचर जो प्रोजेक्ट जाक बेसिकली तार फ्रेमिंग जाक ये से स्कल्पचर जाक से नवा पूर्व जेकोसी जो स्कल्पचर जी तुम मैंने स्कल्पचर देखी जोटार इंडिया मैप अच्छी ओडिशा मैप अच्छी टर्मिनेटर प्रेडेटर ये सब जिनस इवन जो शार्क फिश जो अच्छी ये सब जो गिटार लॉन्गेस्ट गिटार लार्जेस्ट गिटार टॉर्टोइस टर्टल ये सब तार फ्रेमिंग ये फ्रेमिंग माने तार डायमेंशंस जो कट हुए ना डायमेंशंस गोटे जिनस डायमेंशंस हेल्ले ही तो आम से तार ओरिजिनल स्केप्टिकल फॉर्म दे परिवा ना दिस इज द वर्कशॉप where all the sculptures which have been planned जो भी प्लान होता है बेसिकली वो स्कल्पचर्स का डायमेंशंस को हम यहाँ पे फर्निश करते हैं उसका डायमेंशन के हिसाब से उसको रेडी करते हैं उसके बाद उसका जो फिनिशिंग वर्क होता है मतलब यहाँ पे वेल्डिंग का काम खत्म हो गया इंस्टॉलेशन वर्क कलरिंग वर्क बाकी का जो आउटसाइड वर्क होता है वो बाहर में जाकर उसको किया जाता है जैसे कि तुम लोग अभी देख सकते हो यहाँ पे कौन ये ऐसा इसका 2D इमेज है ऐसा कुछ होने वाला है यू ऑल कैन सी जी सर ये होने जा रहा है एंड एब्सोल्युटली यहाँ पे जितने सारे प्रोजेक्ट जो हम लोग वहाँ पे ग्राउंड में भी देखे हैं ना और यहाँ पे जितना भी हो भी रहा है वो सारे हम लोग हमारे जो ट्रेनीज हैं मतलब तुम लोग जैसे अपने कॉलेज के ट्रेनी हो ये सारे मतलब प्रोजेक्ट को ट्रेनीज खुद अपने हाथों से बनाते हैं एंड व्हाई इट इज एसेंशियल बिकॉज कोर एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप यहाँ पे देख रहे हो बताओ तुम कौन सा इंस्ट्रूमेंट मतलब कौन सा यहाँ पे टूल यूज हुआ है टायर ना ठीक है टायर को जब हमारा खत्म हो जाता है तो हम टायर को जनरली क्या करते हैं वो चाहे बाईसाइकिल का टायर हो 2 पहियों का टायर हो या 3 का टायर जो भी हो हम उसको क्या करते हैं फेंक देते हैं ना वेस्ट हो जाता है ना अभी वेस्ट टू हमारा जो मोटो है दैट इज वेस्ट टू वेल्थ अभी यहाँ पे ये कल्चर बन गया अभी ये कल्चर अगर मतलब इतना पब्लिसिटी होगा तो कमर्शियल रिक्वायरमेंट भी इसका आएगा कमर्शियल रिक्वायरमेंट हमारे इंस्टीट्यूशन होने के बाद में भी आया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से इसका डिमांड आएगा कि हमारे लिए बना के दें तो दैट इज वेयर हम लोग यहाँ पे वेस्ट टू वेल्थ तो इसमें कम्प्लीटली बच्चों को ही इंगेज किया जाता है बच्चों को इसलिए इंगेज किया जाता है बिकॉज तुम सब लोग फाइनली इंजीनियरिंग स्ट्रीम में ही हो करेक्ट आगे चल के तुम लोग भी डिफरेंट कॉर्पोरेट्स या एमएनसी में जाओगे सो किसी भी कॉर्पोरेट एंड आईटीआई इज द फर्स्ट इंजीनियरिंग स्ट्रीम आईटीआई के बाद डिप्लोमा के बाद डिग्री करेक्ट ना सो तुम लोग किसी भी कॉर्पोरेट हो या एमएनसी कंपनी हो किसी भी कोर कंपनी में भी जाओगे तुमको 8 आवर्स जो वर्किंग आवर्स रहेगा कोर कंपनी बेसिकली कोर कंपनी की बात कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल कंपनी केमिकल इंजीनियरिंग जनरली इंडस्ट्रियल कंपनी से कोरिलेट करता है तो तुमको कंपनी में बहुत मतलब इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को तुमको हैंडल करना है नॉट लाइक टू बिल्ड ए स्कल्पचर बट रिफाइनरीज होगा जहाँ पे बच्चों को बहुत बार उठा बैठक करना पड़ता है दे गो टू ए पर्टिकुलर हाइट डायमेंशंस लेना होता है फिर अगेन नीचे आना होता है तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चे यहाँ पे एक्सपीरियंस तो अचीव करते ही करते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए कम से कम एक बच्चे भी सेट किया जाता है जैसे कि 20 to 35 डेज उसका पूरा फ्रेम कंप्लीट होता है ये हमारा अभी नया प्रोजेक्ट चल रहा है टायर्स का तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद अगेन वी गो टू ए नेक्स्ट प्रोजेक्ट ओके जैसे कि अगेन ये हमारा फ्लो का एक प्रोजेक्ट है यस देख पा रहे हो ये हमारा मैंने बताया था ये एंटायर ओडिशा का लार्जेस्ट वर्कशॉप है एंटायर ओडिशा का लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेस इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स गवर्नमेंट एरिया बरहमपुर के लार्जेस्ट मतलब इंडोर इन हाउस वर्कशॉप है तो बेसिकली यहाँ पे फिल्टर मशीनिस्ट सारे ट्रेड्स का जो मतलब वर्कशॉप इक्विपमेंट्स
जैसे यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तुम लोग जैसे देख सकते हो बहुत सारे इक्विपमेंट्स। प्रोजेक्ट होता तो हम लोग अंदर जाते, बट देयर इज नो नीड टू गो इनसाइड। टर्नर मतलब हमारा जो 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स के हम लोग जो मतलब बॉल्स हम लोग ना, और यहाँ पे এটা আমরা কোন যেটা বলছি ए बॉयज सुनो, यहाँ पे हमारा पेंटेड ट्रेड, ये पेंटेड ट्रेड है और पेंटिंग जितना भी वर्क्स होता है, नेचुरल पेंटिंग, स्किल पेंट्स, ये सारा मतलब पढ़ाई और लर्निंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर यहाँ पे दिया है। हेडेड बाय हमारे सचिदा सर और सचिदा लुहा प्लेट काम अच्छे फाउंड प्लेट बड़ा मेटाल बड़ा क्रेन मेल जो गाँव देखी जो छोट बुलेट लगे छोट बुलेट लगे जो मैंने समझ जहाँ किसी पुणा सामान था से जो मेल कर ढले करना जो छोट जहाँ किसी मूर्ति मैंने से टाइपटा कर माने तार तार सब अफिस भांगी मैंने आज सब विराट कर सब भांगी के पड़े मैंने आज अच्छी सब डाइस टाइस अच्छी तार से पार्टन जो फर्नेस अच्छी से फर्नेस कोडिंग हो मेटल जो फर्नेस थी से फर्नेस मेटल से कौन मेटल कोडिंग करे जहाँ बाहर पर मेसीन है से जब बाहर तापर तुम जो भी जगह दरकार से तुम डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नेस भी अच्छी ऑयल फाइड फर्नेस ये जोटा कि डीजेल कले ही चली गला डीजेल डीजेल पूरा फुल हम डीजेल फुल है ब्लोएड लगे माने वेस्ट मेटल जी भी तुम जो मेटल भी कर वेस्ट मेटल जाने तुम बोतल हो प्लास्टिक मोल्डिंग हम ना केमिकल किसी कौन यूज करता है हमारे फिल्टर पिलाइन अच्छा टनर पिलाइन जहाँ कि काम किसी कला जो बाहर प्रोडक्शन ये स्टैंड है ग्रीन स्टैंड आम नदी रिजेन काटालिस्ट सब अच्छे रिजेन काटालिस्ट कला से गोटे मैंने बंडिंग कर स्टैंड सब मिसा हो 50% इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। सो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड को अगर आप कभी विजिट करोगे तो आपको और फाउंड्री मैन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हो रहा है। फाउंड्री मैन को जो फाउंड्री मैन का जैसे फर्नेस आपने देखा, तो फाउंड्री मैन को सीधे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, तो नॉर्मल जो सैंड जो लिया जाता है ना